کی خدمت میں شاہد علی کا آداب اور تسلیمات. یقیناً آپ لوگوں نے دل بہار کیفے کے لذیذ اسنیکس سے لطف اٹھایا ہوگا. کیسے تھے اسنیکس؟ ہاؤ واز دیٹ؟ بہت اچھا تھا. تو دل بہار کے لیے ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. حاضرین، سب سے پہلے لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کی جانب سے آپ تمام کو خوش آمدید، اور آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں اس پلے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر خلوص سے، دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر خلوص سے، اب اس کے آگے کام تمہاری نظر کا ہے. کیا بات. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سہیل رنگون والا صاحب اور پٹیل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرز کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام اسپانسر کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کا ہر ایک پروگرام کسی نہ کسی فلاحی کام سے منسلک ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج کا یہ پروگرام کھوئی گوٹ وومنز ہاسپٹل کے نام ہے. کھوئی گوٹ وومنز ہاسپٹل کراچی کے ایک نواحی علاقے ملیر میں واقع ہے، جہاں عورتوں اور بچوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. ملک کے مختلف شہروں سے لوگ اور عورتیں وہاں پہ علاج کی غرض سے آتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے شفا پاتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی طرف بڑھوں، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ہم خراج تحسین اس شخص کو پیش کریں جس کی وجہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں، جن کا کام رات اور دن صرف اسی کوشش میں گزرتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو ملایا جائے تاکہ وہ آپس میں ملیں، محبتیں بانٹیں، رنجشیں کم کریں. شہر کا کوئی بھی فلاحی کام ہو، چاہے وہ مذہبی کام ہو یا غیر مذہبی، کوئی بھی فنڈ ریزر ہو، چاہے ہسپتال بنانا ہو، چاہے کالج بنانا ہو، چاہے اسکول بنانا ہو، آپ ان کو سر فہرست دیکھتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کے بغیر یہ تمام کام ناممکن ہے اس شہر میں. تو میں چاہوں گا ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہمارے والد عزیز محمد انعام اللہ صاحب کو. حاضرین، آج کی شب آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک کھیل پیش کیا جائے گا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ بونس کے طور پر ایک خاکہ بھی پیش کیا جائے گا. اس خاکے کا نام ہے الف نون ان اٹلانٹا. یہ ہمارے ابھرتے ہوئے فنکار بسام شاذلی نے تحریر کیا ہے. الف کا کردار ادا کر رہے ہیں آصف فاروقی صاحب اور نون کا کردار ادا کر رہے ہیں قمر خیاط صاحب. اس پلے کا دورانیہ 7 منٹ ہے. آپ تمام یہاں پر سب موجود ہیں. وہ ہے فل پلیٹ ان اٹلانٹا. خالی پلیٹ ان اٹلانٹا. اچھا، مجھے ابھی پلیٹوں کے چکر میں ہاف پلیٹ، فل پلیٹ میں بھائی اس کے فیس سے ہی باہر نہیں نکلا ہوگا. اور خالی پلیٹ میں ہمیں افسوس بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اس میں نہیں ہیں، خالی ہے پلیٹ. خیر، اس کھیل کا دورانیہ 55 منٹ ہے. اس کو تحریر کیا ہے محمد انعام اللہ صاحب نے، اس کو ڈائریکٹ کیا ہے ڈاکٹر فرزانہ برمل نے، اور اس کے مرکزی کردار میں آپ دیکھیں گے محمد انعام اللہ صاحب کو اور صدف فاروقی صاحبہ کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کا اگلا پروگرام 18 فروری 2024 کو اسی لارنس ویل آرٹ سینٹر میں ان کا جو بڑا ہال ہے، مین سٹیج آڈیٹوریم، جس کی 450 کی کیپیسٹی ہے، اس میں پیش کیا جائے گا. تو پلیز 18 فروری اپنے کیلنڈرز میں ڈیٹ نوٹ کر لیں. یہ پلے بہت اسپیشل ہے. ایک تو یہ کہ یہ شیکسپیئر کے مشہور زمانہ پلے رومیو اینڈ جولیٹ کا اردو ترجمہ ہے. اوریجنلی رومیو اینڈ جولیٹ ایک ٹریجڈی پلے تھا
लेकिन इसे उर्दू में एज ए कॉमेडी लिखा गया है। ये प्ले इनाम भाई के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने ये प्ले ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ मिलकर लिखना शुरू किया। दरमियान में ज़िया मोहिउद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद इनाम भाई ने इस प्ले को मुकम्मल किया। तो आप तमाम से गुजारिश है कि 18 फरवरी अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये प्ले मिस करने वाला प्ले नहीं है। एक और आखिरी बात आपसे करता चलूं कि जो भी लोग आप यहाँ देखते हैं, जो ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं, जिसमें कुछ आर्टिस्ट पर्दे के सामने होते हैं, कुछ पसे पर्दा, सब मिलकर इसको काम करते हैं, और ये सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। वो इस काम के पैसे नहीं लेते, लेकिन सख्त मेहनत करते हैं और इनाम भाई की डांट भी सुनते हैं। तो आपसे खाली एक दरख्वास्त है कि अगर आप इनकी हौसला अफजाई करें तो बहुत अच्छा होगा, और तालियों से बेहतर कोई हौसला अफजाई नहीं है। तो आपके सामने पेश किया जाता है हाज़रीन, पहला खाका अलिफ नून इन अटलांटा। मुझे इतने लोगों के सामने अकेला भूखा छोड़ के अल्लाह सारा खाना खा गए, कुछ नहीं बचा। अल्लाह क्यों चिल्ला रहे हैं? पागल हो गया है क्या? यार अल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में ना चूहे बिल्लियां दौड़ रहे हैं। अल्लाह एक काम कर ने अपने चूहे और बिल्लियों को किसी अमेरिकन गोरे के पेट में छोड़ दे। गोरे के पेट में बहुत कुछ होता है। अबे तेरे पेट में रहेंगे तो वैसे ही खाली मर जाएंगे। अल्लाह तुमने बोला था कि बाहर ना टीचर वालों ने ना चाय समोसे का स्टॉल लगाया है। चाय है, समोसे हैं, मुंह में पानी आ रहे थे, जलेबी। तुमने बोला था सैंडविच सब है। अल्लाह तो सही तो बोला था। और ये लेट क्या बोल रहा है? लिटरेचर एंड आर्ट्स है। अगर सही नहीं बोलेगा तो डॉक्टर फरजाना तुझे ज़हनी मरीज करार दे देगी। यार तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि देसी लोग सारा खाना खा जाएंगे? अबे वो तो शुक्र अदा कर कि ऑडियंस ने पेट पूजा कर ली है। अब आराम से बैठ के ड्रामा देख ले। अबे खाली पेट तो रोमियो जूलियट को नहीं पहचानता। यार अल्लाह खाली पेट से याद आया, एक बात तो बता, तू बंदा बड़ा शतंगर है ना यार। ये इनाम भाई ने क्या चक्कर चलाया हुआ है? क्या हुआ? ये तो धोखेबाजी हुई ना। अबे कैसा धोखा? क्या बोल रहा है? देखना, हाँ। पहला ड्रामा आधी प्लेट, दूसरा ड्रामा फुल प्लेट, मेरे गाने की बारी आई तो खाली प्लेट। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। अल्लाह कभी बात सही कर देता है। देख रहा था कि स्टेज के पीछे बैठे चिकन टिक्का खा रहे थे इनाम भाई, और हम लोगों के लिए खाली प्लेट। नन्हे, मैं ये बात सोच रहा था, ये कारोबार बुरा नहीं, क्यों ना हम भी ड्रामेबाजी करें? पागल हो गया, कोई सवाल का जवाब सही देता ही नहीं। अबे तू कैसे करेगा? इनाम भाई से बड़ा कोई शतंगर है ही नहीं है, कोई प्लेट छोड़ी ही नहीं। अबे आधी भी ले ली, फुल प्लेट भी ले ली, और आज खाली प्लेट भी ले ली। तो क्या तू छुरी कांटों से ड्रामा बनाएगा? सही बोल रहे, चालाक तो बहुत है इनाम भाई। एक ही प्लेट को 3 दफा घुमा दिया, सामान वही है, बस बक्सा बदल दिया। कैसा बेवकूफ बनाया सामीन को। नन्हे, हमें उनकी शागिर्दी करनी चाहिए। और तुमने देखा आज के ड्रामों की टिकटों की कीमतें? अबे इतनी महंगी टिकटें तो शाहरुख खान के प्रोग्राम की भी नहीं होती हैं। अबे ये पैसा कौन सा इनाम भाई की अपनी जेब में जाएगा? हैं? अबे पिछले 3 ड्रामों की कमाई कितने नेक कामों में इस्तेमाल हुई है, हैं? और आज के ड्रामे जो है ना, आज का ड्रामा, इसकी सारी इनकम जो है ना, वो खुफिया जराये से पता लग गया है कि डॉक्टर शेरशाह के औरतों वाले खैराती अस्पताल में जाएगी। इस डब्बे में क्या है?
अबे बड़ी जबरदस्त स्कीम लेकर आए। अबे नहीं कर, तू मुझे मरवाता है, तू मेरे को बिकवाता है हमेशा इन स्कीमों में। मैं तेरी स्कीमों में हमेशा नहीं, मैं नहीं करूँगा अल्लाह, मैं बच जाता हूँ तेरी स्कीम में। नहीं, ये डब्बा मैंने खुद बनाया है, सारा अटलांटा जानता है। इनाम भाई से बड़ा फकीर कोई नहीं है यहाँ पे। गरीबी के नाम पे लोगों को पैसा जमा करते हैं। मैंने समझा लोग मुझे भी उनका कारकुन समझेंगे, मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए उसमें। मेरे ख्याल से $200 तो हो चुके नन्हे इसमें। यार ये लोग गरीबों और मिस्किनों के लिए पैसा जमा करते हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा धोखा देते हुए। अबे कौन सा धोखा और कैसा धोखा? तुझसे बड़ा मिस्कीन और मुझसे बड़ा गरीब है कोई शहर में? यार अल्लाह, तुम इन लोगों की हलाल की कमाई जिनमें इनका खून पसीना शामिल है, तुम इन्हें धोखे से हासिल कर रहे हो। अच्छा फजूल बातें मत कर। देखने में तो मैं फिर भी किसी पढ़े लिखे घराने का लगता हूँ। एक काम कर, ये डब्बा ले, सामईन के पास जा और यतीमों के नाम पे पैसा जमा करके ला। नहीं अल्लाह, मैं भूखा रहने को तैयार हूँ, मैं यतीमों और मिस्किनों के नाम पे ऐसे पैसे नहीं जमा कर सकता। देख नन्हे, मेरी बात, हाँ, ये अमेरिका है, अमेरिका, यहाँ सब चलता है। अबे जब हमारे मुल्क की वहाँ वाली हुकूमत चंदे पे चल सकती है, हमने थोड़ा जमा कर लिया तो क्या करेंगे? अल्लाह, ये तू कर रहा है ना, बिल्कुल गलत काम कर रहा है ये तू। देख नन्हे, कोई काम गलत या सही नहीं होता, पैसा आना चाहिए। मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खैरात के नाम पे किसी को धोखा मत दे यार। देख नन्हे, तू अगर मेरे साथ इस स्कीम में जुड़ गया ना, तो अपनी तमाम माली मुश्किलात दूर हो जाएगी। मान मेरी बात। अल्लाह, मैं ना इसमें तेरा साथ नहीं दे सकता, और बल्कि ना ये $200 भी जो है ना, मैं चंदे में दूंगा, जो आज के ड्रामे का मौजू है। अबे खाली प्लेट भी कोई मौजू होता है? पागल हो गया क्या? अबे मैं भी ना थोड़ा चकरा गया था इस नाम से, फिर मैं गया था उनके पास, वो है ना डॉक्टरनी फरजाना भरमाल। तो उन्होंने ना मेरे को सब समझा दिया। क्या समझाया जरा मुझे भी बता। ये कि ये रिटायर्ड लोग, इनके बच्चे है ना, इनको टाइम नहीं दे पाते, और ये खुद को ना बहुत अकेला महसूस करते हैं। अच्छा अच्छा। और इन्हें ना अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सीनियर सेंटर की जरूरत है। अच्छा। और एक अंजुमन जो है ना, मतलब सीनियर सेंटर बनाने आए हैं बस, ये समझाया उन्होंने। नन्हे, हाँ, तू बड़ा भोला है, तू नहीं जानता इन लोगों को। वो सईद रईस, वो डॉक्टर शिराजी, ये डॉक्टर शाहिद रफी, वो डॉक्टर फरजाना भरमल, वो शाहिद अली कहाँ है? शाहिद अली, वो सदफ फारूकी। अबे जब ये सीनियर सेंटर बन जाएगा ना, तो तुझसे बाथरूम साफ कराएंगे, तनख्वाह में मिलेगा ठेंगा। करता है? नहीं अल्लाह नहीं, मुझे ना इन सब लोगों की नियत ना साफ लगती है। हाँ। और अगर तूने ना इसमें कोई शरारत करने की कोशिश की ना, तो मैं आज एक वारदात करूँगा। ऐसी वारदात? क्या बोल रहा है? देख मेरी बात सुन। हाँ। ये $200 है ना, ये वाले $200 जो है ना, ये मैं चंदे में दूंगा, तेरी जेब में निकाल। मेरा नाम फरजाना भरमल है। आप सबको लिटरेचर एंड आर्ट्स की जानिब से कहती हूँ। किसको मालूम कि हम हुस्न शनासान अज़ल कितने आहान से गुजरे तो यकीन तक पहुँचे। तो आज हमारा ये प्लेटों के सिलसिले का ड्रामा फुल खाली हाफ फुल और उसके बाद खाली पेट के मंजिल पे पहुँचा है। तो ये इस सिलसिले का आखिरी ड्रामा है, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामों के सिलसिले ख़त्म नहीं हो जाते। आपने रोमियो जूलियट के बारे में सुना था, सितारों के आगे जहाँ होनी है, लेकिन इस सिलसिले का ये तीसरा और आखिरी ड्रामा है। नाम इसका खाली प्लेट है कहने को, लेकिन ये खाली नहीं है, ये पुर है उम्मीदों से, गलों से, जज्बों से, हौसलों से लबालब भरा हुआ है उमंगों के साथ। इसका मौजू जैसा कि आपने इब्तिदाई में देखा, वीरान आशियाने के बासी यानी कि एम्प्टी नेस्टर्स है।
और ये इस हवाले से है ये ड्रामा जिससे हम और आप जैसे कई घराने गुजर रहे हैं और आज मिलकर कल गुजरेंगे। तो इस ड्रामे का दौरानिया तो 50-60 मिनट है, लेकिन असल में इसका दौरानिया एक लाइफ टाइम है। किरदार इसमें दो हैं जिन्होंने पिछले ड्रामे देखे हैं, मरकजी किरदार मिर्ज़ा और शाकरा बेगम, लेकिन इसके असल किरदार, इस ज़िंदगी के खेल के किरदार आप और हम हैं। और इस खेल के अख्ताम पे आपको ये देखना है कि आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और राइटर मोहम्मद इनामुल्लाह हैं और डायरेक्टर ये नाजीज़, और इसमें जो एक्टर हैं वो मोहम्मद इनामुल्लाह और सदर फारूकी। तो इस ड्रामे में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है। आपसे दरख्वास्त है कि जब हंसी की बात हो तो जी भर के ऐके लगाइए, जब तंजिया बात हो तो गौर से सुनिए, दिल को टटोलिए, गौर से सुनिए, हम तक गोश होकर सुनिए, और जब सोमवार लम्हे हों तो अभी से खबरदार कर दो, आप अपने आँखों के पैमानों को संभाल के रखिएगा कि कहीं छलक न जाए। तो शुक्रिया। शुरू होता है खाली प्लेट नहीं मुझे नहीं चाहिए। मिर्जा दीवाने हो गए हो क्या? अरे बेगम, बुढ़ापे ने हाफिजा खराब कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि हम रेस्ट रूम जा रहे थे या रेस्ट रूम से आ रहे थे। अरे 1000 दफा कहा है कि पेड्रो प्लम्बर को कॉल कर दो, आए और आकर रेस्ट रूम का नलका ठीक कर दे, मगर तुम्हारे कान पर तो जूं तक नहीं हिलती। अरे वहां से पानी भर के लाते लाते तुम्हारे निजाम इंहिजाम में कई इनकलाबात आ जाते हैं। देखो, अगर पेड्रो प्लम्बर आ भी गया, हाँ, तो वो नलका ठीक करेगा ना, हमारा हाफिजा तो ठीक नहीं करेगा ना भाई। बात भी परेशान हूँ है? गौर से सुनो, अगर हम रेस्ट रूम जा रहे थे तो ये लोटा खाली क्यों है? और अगर हम वहां से फारिग होकर आ रहे थे, ये पेट में गुड़गुड़ क्यों है? मिर्जा, अरे आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, और खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। मगर एक बात याद रखना, इस उम्र में हाफिजा और हाजमा दोनों खराब होने से ना आदमी खड़े खड़े धड़म से गिर पड़ता है, और अगर कोई हड्डी तोड़ बैठे तो क्या होगा है? अब हम दोनों इस घर में अकेले ही हैं, वो तुम्हारा लाडला मुलाजिम अब्दुल भी नहीं कि आए और मदद कर सके। और दोनों बेटे भी दूसरे शहरों चले गए, उनको आते आते तो कहीं लग जाएंगे। और सुनो, हमसे इस उम्र में तुम्हारे नखरे नहीं उठाए जाते। अगर दोनों बेटे हमें छोड़कर दूसरे शहर चले भी गए तो क्या हुआ? आप तो है हमारे पास। अरे आप हमारे लिए ऐसे ही जरूरी हैं जैसे मरीज को नर्स और गरीब को कर्ज। बात सुनो, बूढ़े हो गए, अब तो इस गली में कोई अधेड़ उम्र की शागिर्दा भी नहीं आती। मुशायरे में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई नया शिकार नजर में रख सको। तो ले दे के एक बीवी ही सांस लेती हुई माता आपकी जिंदगी में रहे। तो इस उम्र में जाके
तुम्हें उसके प्यार की जरूरत महसूस हो रही है। वाह मिर्जा वाह। मिर्जा एक बात याद रखना, तुम्हारा माजी दागदार है। इसलिए उसकी चाय और किरदार जब भी गिरते हैं ना मिर्जा, दाग भी छोड़ते हैं। और शादी से पहले तुम समझे कि वफादार हैं, अब पता चला कि अदाकार हैं। सारी जिंदगी गुजर गई, आपका तर्ज तकल्लुम नहीं बदला। अरे हम तो तरस गए सारी जिंदगी एक प्यार भरा जुमला सुनने के लिए, एक रोमांटिक बात सुनने के लिए। अरे मिर्जा कौन सा रोमांस, अरे कैसा रोमांस? अरे शादी के बाद से आज तक आपने हमसे कोई रोमांटिक बात की है? अरे 35 साल मिर्जा, 35 साल हो गए, तो रोमांस की ख्वाहिशें बंद हो। सुन बात सुनो, सुना। बीवी से रोमांस की बात करना ऐसा ही है कि जैसे इंसान मच्छर से मलेरिया के मुताल्लिक बात ये जो आपने हमारी जवानी का हवाला दिया ना, उसका जिक्र ना करेगा, इसलिए कि जवानी तो होती है दीवानी, और शायर की जवानी अरे दीवानी तर दीवानी होती है। अब माजी को छोड़ो, पुरानी बातें, मुस्तकबिल की बात करो। अगर जवानी में हम आपसे जरा अलग अलग रहे भी तो क्या, अब तो मिर्जा कबाब हाउस भी अब्दुल को ठेके पर दे दिया है। अब तो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर और नाजिर हैं। अरे माजी को छोड़ो, खूबसूरत मुस्तकबिल बनाओ। तज़किरे इश्क रहे हज़रत नासिर, कानों को मजा देती है गुफ्तार मोहब्बत। तो फिर ये बताओ कि वो जो तुम्हारे दोस्त कुद्दूसी साहब हैं, वो जो दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, उसके बारे में क्या सोचते? मिर्जा हम क्या पूछ रहे हैं? इतनी दफा समझाएं, शायर पर जब नुज़ूल हो रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मिर्जा जो आपकी आमद है ना बेवक्त की, और ये गुनगुनाना बंद करो। हम पूछ रहे हैं कि दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा था? वो मुमकिन नहीं भाई। क्यों मुमकिन नहीं? भाई नहीं मुमकिन तो नहीं मुमकिन। बताओ क्यों मुमकिन नहीं? शाकिरा, जितने मर्द बैठे हैं ना यहाँ पर, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हर मर्द अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है। सिर्फ वही अपनी अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है जो अपने लड्डू से ज्यादा दूसरे की जलेबी पे नजर रखता है। कैसे कर क्यों मिलेगा? पहली शादी में उमूमन रंग, नस्ल, मजहब, पैसा, ये सब चीजें आड़े आती हैं। और दूसरी शादी? हैं? दूसरी शादी क्या कहा? दूसरी शादी में? दूसरी शादी में सिर्फ पहली बीवी आ जाती है। हमारी तरफ से इजाजत है, जब चाहो कर सकते हो दूसरी शादी, मगर एक बात बता दें, तो दूसरी जैसे लोगों का एतबार ना करना, इसलिए कि हम दर्द के दर्द बनते देर नहीं लगती। अरे जानते हैं हम बेगम, जानते हैं कि दर्द बड़ा बेदर्द होता है, हम सब जानते हैं। हमें भी अकल है, हम भी बादाम खाते हैं। मिर्जा साहब, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती
जाती है। अरे एक है हाजी साहब की बेगम, हमारी पड़ोसी महमूदुन्निसा बेगम। कितना नर्म लहजा है, मुलायम। जब अपने शौहर से बात करती हैं लगता है कि अर्ते गुलाब में शहद घुल रहा हो। हाजी साहब के घर की घास सरसब्ज़ शादाब है और हमारे घर की घास जैसे सूखा धान। घास न यहाँ की सब्ज होती है न वहाँ की। घास सिर्फ वो सब्ज होती है जिसका ख्याल रखा जाए, जिसे मोहब्बत से रखा जाए। अरे मिर्जा हाजी साहब ने सारी जिंदगी अपनी बेगम मेहरुन्निसा के अलावा किसी दूसरी औरत को नजर उठा के नहीं देखा। ये दावा हम भी कर सकते हैं बल। मिर्जा दूसरी औरतों के बारे में ऐसी बातें गजब खुदा का। भाई हम ये जुमला हमने मेहरुन्निसा के लिए थोड़ी कहा। हाँ तो ये तो आपके लिए कहा। अल्लाह गवाह है, भरपूर नजर जब भी डाली सिर्फ आप पर डाली। हाँ, बकिया खवातीन पर जरा जगती हुई नजर डाली, वो भी कभी कभी। और उर्दू गजल लिखने के लिए जल्दों की फरावानी जरूरी है। अरे मिर्जा ऐसा हावजा और ऐसा हाजमा पाकर तो सुधर जाओ, हैं? अरे तुम्हें तो कुछ बोला तो तुम्हें तो आमद हो जाती होगी। उठाओ कागज लिखना शुरू कर दो, हैं? अरे शर्म तुमको मगर नहीं आती तो बात है। भाई गुजारिश है एक आपसे, हाँ, और वो ये कि आप अभी हमें राइट ऑफ मत कीजिए। पीछे मुड़कर देखते रहिए, बाद दफा खिड़कियां बाद में भी खुलती हैं। हम जानते हैं कि हमने कई जगह मुंह मारने की कोशिश की, मानते हैं, मगर दीवाने गालिब की कसम सच्ची मोहब्बत सिर्फ आपसे की। और याद नहीं, सारा दिन खड़े रहते थे शादी से पहले आपकी खिड़की के नीचे। अरे तो शादी करते ही क्या हो गया? कहाँ चली गई वो सारी मोहब्बत, हैं? हाय मिर्जा, काश तुम जान सकते। अरे मिर्जा, मर्द वो नहीं होता जो हजारों औरतों को दीवाना कर दे। अरे मिर्जा, मर्द तो वो होता है जो एक ही औरत को हजारों बार दीवाना कर दे। औरत को राजी रखने के लिए लुकमान की हिकमत, अय्यूब के सब्र और कारून के खजाने की जरूरत है। और ये नेमतें अल्लाह ने हमें अता नहीं की, समझी? अरे हम तो सारी जिंदगी डर डर कर गुजारती हमने। बताओ जरा, बचपन में वालिदैन से डरते रहे, बड़े हुए तो पता चला असातिज़ा से डरना जरूरी है, अमेरिका आए तो पता चला कि अपने ही बच्चों से डरना जरूरी है? और अब ये आखिरी वक्तों में मौत से बड़ा डर। मिर्जा, बीवी से डरने का जिक्र नहीं किया। वो डर के मारे नहीं थे। हम तो बस सिर्फ एक बात जानते हैं कि मशरिकी मर्द का इश्क और मोहब्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अरे सारी जिंदगी माशूका से वो शादी नहीं करता और बीवी से इश्क नहीं करता। अरे बे, हम तो शादी से पहले की मुलाकात में ही आप पर मर मिटे थे। और अगर कोई आप पर मरता है ना तो कोशिश कीजिए कि वो जिंदा रहे। अरे तो शादी करते क्या हो गया मिर्जा? कहाँ चली गई तुम्हारी सारी मोहब्बत, है? बता दे। बता दे। महबूबा का बीवी बन जाना ऐसा ही है
जैसे एक खूबसूरत गजल का नसर में तब्दील हो जाता है। और तुम ही बताओ, एक ही नसर को इंसान कितनी दफा पढ़े? अरे एक रूमान परवर खूबरू शायर जिसे सुर्ख गुलाब लाने की ख्वाहिश हो, अगर उसे धनिया पुदीना लाने पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये बताओ भाई साहब कि तुम ये नारगिरास वाले मुशायरे में क्यों नहीं गए? अरे $200-400 ही मिल जाते। अब नहीं जाएंगे भाई किसी मुशायरे में। ये जो मुशायरे हैं ना, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मिर्जा साहब, अपने अंदर कुव्वते बर्दाश्त पैदा कीजिए। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। अब नहीं जाएंगे किसी मुशायरे में हम। आपके सारे अल्फाज रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़ी। हालांकि बजाने ये हम ये कह रहे थे कि हालांकि कलम भी देखो क्या चीज है? स्याही में गोता लगाता है और सारी दुनिया में रोशनी फैल। देखो, अब 24 घंटे घर में भी तो नहीं बैठा जा सकता ना। पर निकला करो, दोस्तों से मिला जुला करो। 2-4 दोस्त और भी तुमसे मिलने आ ही जाते हैं ना। अरे छोड़ो जा, कौन से दोस्त, कहाँ के दोस्त? कोई हाजत हो तो चले आते हैं। हमें यारों ने मजार समझ रखा है। खैर मिर्जा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो खैर, सारे दोस्तों को जाने दो। ये बताओ कि वो हमारी मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है? मिर्जा, पिछले 7 सालों में तुम जब भी बीमार पड़े हो ना, हमेशा खुद घर आके पानी दम करके पिला के जाते हैं। अरे हमने हमेशा ये चाहा कि कुछ खा पी कर जाएं, मगर एक कप चाय तक का नहीं पीते। अरे मिर्जा, बात सुनो, ये अच्छे लोगों की संगत में रहा करो। सुनार का कचरा भी ना बादाम से महंगा फरोख्त होता है। पिछले 7 सालों में हम कई दफा बीमार पड़े। मौलवी साहब को आज तक बीमार होते नहीं देखा। ये शायद हलवा हर बीमारी का इलाज है। ऐसी भी खैर कोई बात नहीं भाई। हमने जब भी उनके यहाँ हलवा भेजा, उन्होंने कभी खुद नहीं खाया, हमेशा दूसरों में बांट दिया। भाई बात दरअसल ये है कि दूसरों के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। छोड़ो शाकिरा, तुम इन मौलवियों से वाकिफ नहीं। इनमें और हमें बड़ा फर्क है। इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, हम महकशों को एक ही महखाना चाहिए। तुम भी तो देखो ना, तुम भी तो हर एक से अपना रवैया सख्त रखते हो, हर एक पे नुक्ताचीनी, हर एक से तल्ख कलामी, तो कोई कैसे करेगा तुम्हारी इज्जत? एक बात बताएं मिर्जा, काम किया सुन लेना। बताओ। देखो, चाबी से खुला ताला अरे बार बार इस्तेमाल हो सकता है, मगर हथौड़े से खुलने वाला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसीलिए अरे मोहब्बतों और रिश्तेदारियों के ताले, दोस्तियों के अरे मोहब्बत की चाबी से खोलो, अरे गुस्से के हथौड़े से नहीं। अरे हर कोई मारने के लिए हाथ में पत्थर नहीं उठाता मिर्जा, कुछ लोग रवैयों से भी ये काम करते हैं तुम्हारी तरह। तो ये कहना चाह रही हो कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते? पूछ ले। ख़वातीनो हज़रात, आप में से जो
बहुत तकलीफ है। हम ये कह रहे थे कि ख़वातीन और हज़रात, आप में से जो लोग हमें पसंद करते हैं वो अपना हाथ बुलंद करें, और जिन लोगों ने अपना हाथ बुलंद नहीं किया वो अपना मियार बुलंद करें। अरे भाई, हम अदीब हैं बेगम, और अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को जिंदगी बख्शते हैं ना, वैसे ही अच्छे अल्फाज दुखी दिलों को तस्कीन देते हैं। जानते हैं, मगर गौर कभी कभी करते हैं। तुम वैसे ठीक कह रही हो, तस्लीम करते हैं तुम्हारी बात को। मेरी तबीयत खराब है, तुमने हमारी बात मानी। चाय पियोगे? अरे आप पिलाएंगी तो जहर भी पी लेंगे। ये बताओ, हाँ। अच्छा चाय ले आके बताओ, मुझसे तुम सुनते नहीं। हाँ। ये लो चाय भी गरम गरम पत्ती की बनाई है। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। चमचा भी खेलने साथ समझोगी लाओ। ये बताओ, एक तो हमें एक तो पैसे दिए तुमने, ऊपर से हमारा माइक भी बंद करा दिया। क्या बताएं? इसके लिए तो ज्यादा देने पड़ेंगे। खैर, हमारी आवाज को माइक की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। और अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा के हलक फटा हुआ है हमारा। मिर्जा, ये बताओ कि क्या हम इस साल हज करने नहीं जाएंगे? अरे बताया शाकिरा। अरे लाओ बेटी, इतना तो हम भी कर सकते हैं। देखो, ये चीज ना ड्रामे में चाशनी पैदा कर रही है। हाँ, जज्बाती हो गए थे ना मिर्जा हम तुमसे। ऐसा करते हैं मिर्जा, इसको ऐसे लगा देते हैं। बस ठीक। चलो ठीक है, इसको ऐसा कर लेना। इसकी बचपन की आदत है, जब तक कान ना पकड़ो कोई काम सही नहीं। क्या करते हैं, अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी थी, ये हरकतें तो सीखनी थी। क्या करते? ये जो हमारे ये जो लगा हुआ है ना छुत्तली की तरह, हम क्या करें इसका? छुत्तली की तरह है तो पकड़ी रहो क्या? अरे हम तुमसे पूछ रहे थे मिर्जा कि इस साल क्या हम हज पर नहीं जाएंगे? हज पर? हाँ। अरे बताया ना बेगम, हाँ। कि 10-12 हजार डॉलर फी फर्द लग रहा है हज पर जाने के लिए। अब इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आए? रेस्टोरेंट के ठेके से जितने पैसे आते हैं उससे घर का खर्चा ही निकल जाए तो बड़ी बात है। अच्छा मिर्जा साहब, तो ये काम आप इसलिए अंजाम नहीं दे रहे कि आपके पास पैसे नहीं हैं? और क्या, वरना तो तुम हमें जानती हो अच्छी तरह से भाई कि हमें अपनी जिम्मेदारियों और फराइज का भरपूर एहसास है। ये तुमने भेजा हो तो मुंह पे टेप लगा दो। एक तो वो लगा गया मगर गलत जगह लगा गया। हमारा भी वक्त आएगा ना, चूना दिया ना पान में ज्यादा तो कितना। ये बताइए जनाब कि हम हज पर इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी बताया, फिर से बताया देते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों और फराइज का पूरा एहसास है, वरना तो जरूर जाते हज पे, क्यों न जाते? तो ये बताओ हाँ। कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो तो बिल्कुल मुफ्त है। वाह भाई वाह, आलिमों वाले दलाइल पेश कर रही हैं आज आप। वाह, अगर बुरा न माने तो हम भी एक बात पूछें आपसे। पूछो। एक जमाने में अगर कोई कुत्ता आपके करीब से भी गुजर जाता था तो घर आकर कपड़े तब्दील करती थी।
وضو کرتی تھی، کسی ایسے گھر نہ جاتی تھی جس گھر میں کتا ہوا کرتا تھا. اب یہ ہمارے یہاں جو کتا ٹائیگر ہے اور ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. جس محبت سے صغیر نے ٹائیگر کو پالا اور وہی محبت جب ٹائیگر نے صغیر کو واپس کی تو ہمارے لیے تو نیا تجربہ تھا نا مرزا. بس ہمیں بھی محبت ہو گئی ٹائیگر سے. اور مرزا تم بھول گئے کہ صغیر شکاگو کے جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہاں کتا ہوتا تو رکھ نہیں سکتا. اور مرزا تم یہ بھی بھول گئے کہ کتا کس قدر وفادار جانور ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر آتا ہے تو ہم انسان کتے کی مثال دیتے ہیں. مگر ایک بات نہ بھولیے گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے. کبھی کبھار آپ کے وفادار بھی کتے نکل آتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگنے لگتی. تم کچھ بھی کہو بیگم، ہمارے بیٹوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ تھے نا مشہور سائنسدان پاکستان کے قدیر خان صاحب، ان کا شعر ہے، گزر تو گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری. دیکھو مرزا بات سنو، ہم نے 1000 بار کہا ہے کہ جو کہنا ہے نا ہمیں کہو. ارے ہمارے بیٹوں کو کچھ نہ کہا. مرزا دیکھو زندگی کے ہاتھ نا بڑے بھاری ہوتے ہیں. جب وہ تھپڑ لگاتی ہے نا تو گالوں پہ دیے ماں کے بوسوں سے بھی خون رسنے لگتا ہے. ارے ہم نے مانا کہ جو قدریں ہمارا مان تھی وہ اب کوڑیوں کی مول بکتے ہم تسلیم کرتے ہیں. پر کیا کریں، ماں ہے نا مرزا. ایک ماں کا دل تو اولاد ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے. ماں ہے نا مرزا. کیا ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے کیا؟ مرزا بات سمجھنے کی کوشش کرو نا. بھئی اب بچوں کی بھی اپنی زندگیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اپنے بچے ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے دوسرے شہر چلے بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی برا لگا تھا تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہا کیوں نہیں ان سے کہ یہی رہو اٹلانٹا میں، مت جاؤ دوسرے شہر؟ کبھی کوئی سمندر دریاؤں سے بھیگ نہیں مانگتا شاکر. ہم بچے تھے نا تو اپنے ماں باپ کی بات سننے کا رواج تھا. جب ہم بڑے ہوئے تو اپنے بچوں کی بات سننے کا رواج تھا. ارے ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں. ارے مرزا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم بچوں سے لڑتے کیوں نہیں؟ ان سے کہتے کیوں نہیں کہ یہاں واپس آ جائیں؟ جب ان کا فون آتا ہے تو چلاتے کیوں نہیں؟ یہ تو بزدلی ہوئی نا مرزا. بزدلی؟ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا بزدلی نہیں بیگم، خاندانی ہونے کی نشانی ہے. ہم جانتے ہیں کہ سارا قصور ان کا بھی نہیں. ہم بھی تو ان بچوں کو پاکستان سے اٹھا کر امریکہ لے آئے. جو قدریں وہاں رہ کر ان کی شخصیت کا حصہ بن سکتی تھی، یہاں رہ کر بھلا کیسے وہ ان اقدار کو اپنا سکتے؟ قصور اس میں ہم لوگوں کا بھی تو ہے بھائی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا تو سکون لوٹ لیا اولاد. بچوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا بیگم، یہ بتائے دیتے. اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہم ناشکری نہیں کر رہے بیگم. بس ایک بیٹی بھی عطا کر دیتا تو کیا ہوتا. ارے جدھر دیکھو ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے.
का ज़र्फ तो देखो। अरे उनके सामने हम हाथ उठाकर अल्लाह से बेटों की फरमाइश करते हैं। वाह भाई वाह, अरे किस कदर अजीब हैं हम लोग, हैं? सबको मर के अपनी अपनी कब्र में जाना है, मगर मोहब्बत हम निभा नहीं सकते, नफरत हम सह नहीं सकते। अरे मेल जोल से तो हम कोसों दूर भागते हैं, गलती हम तस्लीम नहीं करते। अरे माजरत करना तो तौहीन लगता है, तौहीन। और इबादत, वाह भाई वाह, इबादत की तो हमको खबर ही नहीं। और उस पर हम ये कहते हैं कि औलाद ने सुकून छीन लिया। वाह मिर्जा वाह, क्या बात है। आपको जो आज कहना है कह लो, हम सुन लें, मगर दिल पर अब ऐसी उदासी छाई है कि बयान से बाहर है। हम कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं। हर रोज उदास होते हैं और शाम गुजर जाती है, एक रोज शाम उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। अगर अर्श वाले से रिश्ता मजबूत हो ना, तो ये फर्श वालों की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जगह हम सब मायूस होके बैठ जाते हैं ना कि बस अब ये काम मुमकिन नहीं, बस मिर्जा वहीं से मेरा रब अपने मोजज़ों की शुरुआत करता है। और एक बात बताएं मिर्जा, हमें यकीन है कि एक दिन हमारे दोनों बेटे लौट के घर जरूर आएंगे। मिर्जा हमें यकीन है दोनों बेटे घर आएंगे। लौट कर यादें आती हैं बेगम, वक्त नहीं। वैसे हम तुमसे इत्तेफाक करते हैं कि हर ख्वाहिश को इस बात का हक हासिल नहीं कि उसकी तकमील भी हो। अब तलखियों का सामना करने का वक्त आ गया है शाकिरा। हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा खुशकिस्मत थे। अरे जाने वालों, तुम्हें मुबारक हो, अच्छे वक्तों में जी लिए तुम लोग। एक बात बताएं, किसी मरने वाले को ना ये मालूम नहीं हो सकेगा कि उसके जाने के बाद तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, मगर एक जिंदा शख्स को मरते दम तक ये याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो बचे कुचे रिश्ते रह गए हैं ना मिर्जा, उनकी कदर कीजिए। वाह भाई वाह, क्या उर्दू बोल रही हैं आज आप। अरे इसी वजह से तो आपकी बातें हमारे दिल में उतर रही हैं। जिसकी उर्दू जबान होती है उसकी बातों में जान होती है। ये स्वेटर किसका बुना जा रहा है? आई मिर्जा, वो अपने पोते का स्वेटर बुन रहा है, नीले रंग का। आई कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। पोते से याद आया, मंजूर मियाँ ने कहा था कि आज वो क्या कहते हो भाई तुम लोग, वीडियो कॉल करेगा हमारे पोते के साथ। आया था फोन? हाँ मिर्जा, बिल्कुल आया था। अच्छा। मिर्जा आया था, मंजूर का फोन आ रहा था। मिर्जा जब तुम गए थे ना गिरासरी करने, मिर्जा जब आया था ऐसा बुड्ढा लग रहा था हमारा पोता कि हम क्या बताएं। मिर्जा हम झूठ नहीं बोलूं, आया था। मिर्जा को कहना था कि कल दोबारा फोन करेगा ना मिर्जा, कहेगा। हाँ हमसे बात कराएगा। अच्छा, जमाले यार में रंगों का इंतजार तो देख, सफेद झूठ है जालिम के सुर्ख होठों पर। कौन आया? देखो भाई, ये सिर्फ हमारा ही मसला थोड़ी है। हर जाने वाली नस्ल अपनी आने वाली नस्ल से मायूस ही रहती है। वैसे एक बात पूछें हम तुमसे? हाँ भाई जरूर पूछो। जवाब दोगे? क्यों नहीं, जो चाहे पूछना, पूछो।
بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کی بہت خدمت کی، مگر یہ بتاؤ کہ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تو 5 بیٹوں میں سے کتنے بیٹے ان کے پاس تھے؟ مرزا جواب دو نا، ہے مرزا بتاؤ نا، جب 5 جوان بیٹوں کی ماں کا انتقال ہوا تو کیا ایک بھی بیٹا ان کے پاس تھا؟ ہماری ماں کا انتقال اچانک ہوا تھا، وہ بیمار نہیں، ہم 5 کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج ایسا ہو جائے۔ 5 جوان بیٹوں کی ماں تن تنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لوگ کہتے شاکر میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہ تھی اور شاید ٹھیک ہی کہتے، میں 1 روٹی مانگتا تھا تو 2 لے آتی تھی۔ دیکھو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک نہ ایک دن سب نہیں جانا ہے، تو خدا را جو بچے کچے رشتے آپ کے پاس رہ گئے ہیں نا، ان کی قدر کیجیے۔ ارے اگر ہر ایک سے بیر رکھو گے نا تو بچی کچی زندگی میں بھی زہر ہو جائے گا۔ دلوں پر لگے داغ اتنی جلدی نہیں دھل جاتے ہو جاتے، تم تو ہر مشکل کو سہل بنا کر پیش کرتے ہو، حالانکہ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو زبان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا اور کہاں پہ بھول جانا۔ اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کسے آواز دینی ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے، بڑا دشوار بڑا میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں مرزا، مگر بچوں کو بھی تو اپنی زندگی اپنے حق سے گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ارے بچوں کو بھی تو یہ حق حاصل ہے نا کہ وہ اپنی پسندیدہ زندگی اپنے پسندیدہ شہر میں گزار سکے۔ دیکھو مرزا ایک بات سنو، رشتے نا موتیوں کی طرح ہوتے، اگر کبھی گر بھی جائے نا تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ اب ہم دونوں پر موسم خزاں ہے بیگم، اور خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کا غم شجر محسوس کیوں کر نہ کرے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ میرے جلتے مکان کو کیا معلوم میرے اپنے چراغ بجھے۔ خیر بتا دیا ہے کہ بچوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اور ہم حساب لینے کے عادی ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ جو آپ عشق میں حساب و کتاب کی بات کر رہے ہیں نا، ہم جو کرنے بیٹھے تو خرید لیں گے تمہیں۔ ایسے مرزا بچوں پہ ہی تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی نا، بھائی ان کے علاوہ بھی بہت سے محبت کرنے والے ہیں آپ کی زندگی میں۔ کل ہی فون آیا تھا آپ کی وہ بے سری شاگردہ دردانہ کا، پوچھ رہی تھی کیسے ہیں مرزا بھائی؟ دردانہ نے ہمیں بھائی کہہ کر پکارا؟ مرزا 90% خواتین دوسرے مردوں کو بھائی احترام نہیں کہتی، احتیاطاً کہتی ہیں۔ اور ویسے پتہ ہے کہہ رہی تھی کہ
इस दफा उन्होंने कुर्बानी पर 4 बकरे ज़िबा किए और बता रही थी कि शरअ के मुताबिक बेऐब बकरे बड़ी मुश्किल से मिले। वाह भाई वाह, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला कैसा भी हो चलेगा। मिर्जा, खैर तो है, एक जमाने में तो आपकी बड़ी गाड़ी छमकी थी उनसे। अरे नहीं, वो शागिर्दा थी, दरअसल इस्लाह के लिए आती थी और कोई बात नहीं। मिर्जा, हमारे सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। जवानी की बात और थी, महफिल आ रहा थे, फिर कम नुमा होते गए, देखते ही देखते हम क्या से क्या हो गए। अरे मिर्जा, वैसे तुम बता रहे थे कि जब लुकान था फिर पूछेंगे। सवाल भी ऐसे ही है हमारा। ये बताओ, तुम कह रहे थे कल तुम अस्पताल गए थे तो वहां तमन्ना कलीम को देखा था। मिर्जा, जब हम तुमसे कोई बात पूछे ना तुम्हें गुनगुनाना शुरू कर देते हो। हम पूछ रहे हैं कि तमन्ना कलीम को देखा था। आमद भाई आमद, समझती नहीं हो तुम बातों को। तुम और तुम्हारी आमद। हम पूछ रहे हैं कि कैसी रही मुलाकात। भाई अस्पताल में गए थे, वो भी अस्पताल में वहां मौजूद थी और कोई बात नहीं। तो क्या कहा तुमने? क्या कहना था, कौन सी मुलाकात? उनके गले में वो बड़ी सी पट्टी, क्या कहते हो भाई तुम लोग, बिरेस पहनी हुई थी, हैं? और हमारे दिल में तुम्हें पता है स्टंट लगे हुए ना, उनकी गर्दन घूमी ना हमारा दिल धड़का। अरे बेगम, उम्र गुजर गई, आपका शक करना नहीं है। शक को वैसे एक बात और बताएं, बताओ। ये जो औरत जात है ना, इससे हमारा दिल अब कुछ उतर सा गया है। खुदा ना खास्ता खैरियत तो है। खैरियत है, मगर जिन संदिल हसीनाओं पर हमारी जवानी की हाय पड़ी और जिनसे हमने और उन्होंने हमसे साथ रहने और मरने की कस्में खाई, वो सब की सब बेवफा निकली। अरे उनमें से तो बाज के जुड़वा बच्चे भी हुए। हाय मिर्जा, अरे शायर होने के बावजूद तुम ये ना जान सके कि मोहब्बत कहते किसे हैं। अरे मिर्जा, मोहब्बत तो अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत का नाम है। आप वाकई शायरा भले हो ना हो, लेकिन इल्म और फन में किसी से कम नहीं। और ये भी ठीक ही बात है कि एक आशिकी शायरी करने वाला शायर जरूरी नहीं कि इश्क के सही मतलब भी समझता हो, है? अरे कश्मीरी पुलाव में कौन सा कश्मीर होता है, चटनी कबाब में कौन सी चप्पल? तुम्हारी आधी बातें तो मेरे सर से हो जाती हैं। मिर्जा, जाओ जाके नहाओ, फकीर लग रहे हो, फकीर। आप शायद हमें भिखारी कहना चाह रहे हैं, हम फकीर कहलवाने के लायक नहीं। अरे जिसको जमाना ठुकरा दे वो भिखारी होता है, और जो जमाने को ठुकरा दे वो फकीर होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि कल तुम अस्पताल गए थे तो डॉक्टर शाहिद रफीक ने क्या कहा?
मिर्जा हम पूछ रहे सुनाए दिया करो भाई, आमद है। हम पूछ रहे हैं कि शाहिद रफीक ने कल क्या कहा तुम्हारी सेहत के बारे में। गया था डॉक्टर शाहिद रफीक की क्लिनिक कल में, वो न जाने मरीज को देखते वक्त मरीज की तरफ कम और अपनी नर्स की तरफ ज्यादा वैसे एक बात कहेंगे भाई, डॉक्टर शाहिद रफीक की उर्दू से मोहब्बत तारीफ के लायक है भाई। वाहिद डॉक्टर हैं जिन्हें मरीजों की जुमला सेहत से ज्यादा उर्दू के जुमले की सेहत की ज्यादा फिक्र होती है। मिर्जा उन्होंने तुम्हारी सेहत के बारे में क्या कहा? यकीनन मिर्जा यकीनन उन्होंने परहेज बताया होगा, जब ही तुम बात इधर से उधर किए जा रहे हो। अरे भाई उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाँ पकड़कर नब्ज देखी, हैं? हाँ कहा तुम भाई? अब मिर्जा डॉक्टर ने क्या कहा? नब्ज देखने के बाद फरमाने लगे हाँ। कि आप गोश्त और मीठा छोड़ दें। हमने कहा डॉक्टर साहब आप मेरा हाथ छोड़ दें। तो बस तय हो गया, आज के बाद अगर वो तुम्हारा लाडला अब्दुल इस घर में कब आए ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। और चीनी का मर्तबा तो हम पहले ही ताले में रख चुके हैं, अब तो कल से इस घर में सिर्फ दाल और सब्जियां पकेगी। बेगम खुदा को मानो बेगम, अगर हमें 2 दिन गोश्त ना मिला तो हम उर्दू शायरी ना कर पाएंगे भाई। तो ना करो, तुम कौन सा हम पे शायरी करते हो? अरे ये क्या कह रही हो? कल ही सुबह की बात है, हाँ। तुम पर शेर हुआ और क्या? मिर्जा तो सुनाइए ना। अरे सुना दीजिए, तो क्या करेंगे? शेर सुनाए। मैं हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सुना। आपने लिखा है तो कुछ अच्छा लिखा होगा ना। अच्छा ही लिखा है और क्या? सुनाओ। सुना दे। अर्ज किया है, तुम मेरे पास होती हो बेगम जब कोई दूसरी नहीं होती। मिर्जा पर बहुत हो गया मजाक। अरे सारा मजाक है भाई, मजाक है। बहुत हो गया तुम्हारे घटिया मजाक। अरे सारा दिन खिदमतें करो और ऊपर से इनके ये घटिया मजाक भी बर्दाश्त करो। सेहत का ख्याल रखा करो, है कि तुम्हारी सेहत काट के लाए। अब घूमने तो रह गए हैं। प्लेट या रद्दी को तो डायलॉग छुप जाएगा। मेरे बताए हैं, ख्याल रखा करो। जब आप इतने प्यार से कहती हैं ना कि अपना ख्याल रखा करो, तो दिल ये चाहता है कि अपने आप को एक लिफाफे में डालकर अलमारी के ऊपर वाले खाने में। मगर एक बात कहेंगे, शौहर के एहतराम में आप जरा कमजोर हैं, और जो बीवी अपने शौहर का मुकम्मल एहतराम नहीं करती उसको दौलत में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ना मिले, मैं भी कौन सा हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा। जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या फरमाया आपने? अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज में हमेशा हमें मौत का खतरा रहता है। दिल ये कहता है कि अगर हम अल्लाह को इतना याद करेंगे तो जवाबन अल्लाह हमें ना याद कर ले। अरे कहने को अल्फाज ना रहे और सहने को उम्र काफी है। कौन सी उम्र कैसी उम्र है? हमें तो लगता है कि बस हमारी फिल्म का आखिरी हफ्ता चल।
ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کتنے زندہ ہیں. ارے موت ایک دم نہیں آتی. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا کوئی پیارا محبت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑے سے مرتے ہیں. جب کوئی پیارا آپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جائے تو آپ تھوڑے سے مرتے ہیں. جب کوئی خواب آپ کا پورا نہ ہو تو آپ تھوڑے سے مرتے ہیں. پھر آخر میں موت آتی ہے اور ان سب ٹکڑوں کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے. مرزا، میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دوسروں سے لامحدود توقعات محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں. ارے ہر چیز کو منفی تناظر سے مت دیکھا کرو، خوش رہا کرو. ہاں، ہمیں کوئی خوشی نہیں بانٹ سکتا. ہمیں خوشی اپنے اندر پیدا کرنی، یہ بات تو ہے. اب ہمیں خود کو اہمیت دینی ہے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور اہم نہیں ہوتا. اور یاد ہے کراچی سے آتے ہوئے اٹلانٹا ہوائی جہاز میں وہ لڑکی کیا ہے کیا کہتے ہو تم لوگ، اس نے بڑی اہم بات کہی. کہنے لگی کہ اگر آکسیجن کا ماسک نیچے آ جائے تو پہلے اپنے منہ پر لگائیے، پھر کسی اور کی مدد کیجیے. تو بتاؤ شاکرہ، ہم کریں تو کیا کریں بھائی؟ کبھی ہم سے بھی مشورہ مانگ لیا کرو. ارے مانگا تو اتنے لوگوں کے سامنے مانگا. ٹھیک ہے، مانگو پھر مشورہ دیں گے. اور ہمارا مشورہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. دیکھو، اب تم نے ہم سے پوچھا ہے تو سن. جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کسی سے امید نہ رکھنا. ارے یہ مطلب کی دنیا ہے مرزا، مطلب کی. یہاں یہ لوگ جنازے بھی نا اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مرزا تمہیں محبت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں تو اپنے اندر کھڑی وہ رکاوٹیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہوئی ہیں. ارے مرزا، اگر تم ہماری یہ دونوں باتیں اپنی گرہ سے باندھ لو نا تو باقی کی زندگی بھی خوشگوار گزر سکتی ہے. ارے انسان کی تقدیر اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. مرزا وہ ہے نا تمہارا پسندیدہ شعر، راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. ایک غریب باپ ٹین کی چھت کی طرح ہوتا ہے. سارے موسم جھیلتا ہے، مگر گھر میں رہنے والے کہتے ہیں کہ گرم بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور شور بھی بہت کرتا ہے. لوگ ایک بات نہیں سمجھتے کہ درخت اگر بوڑھا بھی ہو جائے اور پھل نہ بھی دے سکے تو کم سے کم سایہ ضرور دیتا ہے. کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ میں آ جائے. ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ باپ کے قدموں تلے. باپ کے قدموں تلے نا ایک پھٹا پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے لیے گر جاتا ہے. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اب بھی آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ باقی ہے. مرزا صاحب، ساری عمر چلتی ہے مگر پوری نہیں ہوتی. یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. تمہارے کردار اور سادہ طبیعت کی داد دینی چاہیے کہ تمہیں ایک غریب شاعر سے محبت ہو گئی، ورنہ خواتین تو صرف امیر حضرات کو ہی پسند کرتی ہیں.
ये तुमसे किसने कह दिया? अगर मोहब्बत में दौलत की अहमियत न होती तो लड़कियों के ख्वाब में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी ने यूं नहीं कहा कि मुझे मेरे सपनों का मोची लेने आएगा। अच्छा एक बात सुनो, मिर्जा तुम्हें पता है ना, याद है कि अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आ रही है। मिर्जा हम बता रहे हैं कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है और इस दफा तो हमने सोच लिया है कि हम एनिवर्सरी पर एक काला बकरा ज़िबा करेंगे। वो इसलिए कि वो जो है ना वो खुद को उनकी क्या मेहरुनिसा हाजी साहब की बेगम मेहरुनिसा अरे इस कदर नजर लगाती हैं कि हम क्या बताएं हमारे हुस्न को। तो इस दफा हमने सोच लिया कि हम अभी से पैसे जमा कर रहे हैं, हम पैसे जमा करके काला बकरा ज़िबा करेंगे अपनी एनिवर्सरी पर। कसूर हमने किया तो उसका बदला बकरे से क्यों लिया? मिर्जा अगर शादी कसूर है तो कुद्दूसी तुमसे ये कसूर दोबारा क्यों करा रहा है? भूलती नहीं हो तुम, ऊँटनी जैसी मेमोरी है आपकी। अरे अब मुलाकात कहाँ शीशे से पैमाने से, फातिहा पढ़ के चले आए हैं मैं। मिर्जा कभी कभी ना ये अपने माथे की तेवड़ियां हटा भी दिया करो। अरे मुस्कुरा कर बीवी को देखने में भी ना अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है। आपको पता है कि ये अजर अपनी ही बीवी की तरफ देखने में मुझे बिल्कुल पता है। अगर आपको पता है तो अल्लाह ताला को भी इस बात का पता था कि ये काम कितना मुश्किल है। बस बहुत हो गई, अब कल से आज से इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगी, बस बात खत्म। अरे ठीक है भाई, वही होगा वही होगा। तो सुनो, हमारी तुम सुनते नहीं कि बोलो करती रहते हो। देखो बात सुनो, हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चुरी करते हैं हाथ, हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिर्जा। चुरी ना रखी आपकी ज़बानी का। अब बोल ले, अब भूल गया, अब बोलते अब पहला सबक सुन लो हमारा। भाई बात सुनो, देखो भाई हर चीज को ना मनफी अंदाज में मत देखा करो। अरे बारिश हो जाए तो पर्स और पैसा को तलाश करो, और अगर रात अंधेरी हो ना मिर्जा तो तारों का नजारा करो। जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर मैं क्या करूं शायद, जो मेरा दिल है ना ये एक जंगली जानवर है, इसीलिए इसे पसलियों की सलाखों के पीछे रखा गया, वरना न जाने हम क्या कहते। खैर बहुत हो गई गमज़दा बात। और सुना है तुम्हारी दोस्त हुस्न आरा आई, क्या कह रही थी भाई? हाँ अरे मिर्जा हम तो बताना ही भूल गए तुमको। हाँ। अरे हुस्न आरा आई थी कल। अच्छा क्या कह रही थी? मिर्जा कह रही थी कि पिछले 2 साल से शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। अच्छा। भाई कहने लगी हर जगह आना जाना छोड़ दिया था। हाँ। बस घर में बैठी रहती थी, न किसी से मिलना न किसी से जुलना। फिर कहने लगी कि हमने सोचा कि किसी बावलों की डॉक्टर को दिखाएं, तो फिर वो गई थी बावलों की मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास। तो गई थी ना फिर वो डॉक्टर फरजाना के पास। कहने लगी हमने कहा कि ए डॉक्टर फरजाना को दवा लिख देंगी। तो डॉक्टर फरजाना ने कहा कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील करने की जरूरत है। भाई अपने हमउम्र या अपने हम ख्याल लोगों में बैठा कीजिए। तो फिर बताइए क्या हुआ मिर्जा? कहने लगी 2 हफ्ते
अरे 2 हफ्ते में उनकी जिंदगी बदल गई। कहने लगी ऐसा मैं खुश रहती हूँ कि इंतहा नहीं, हर हफ्ते मिर्जा 2 फिल्में देखती है, एक दिलीप कुमार की और एक शाहरुख खान। मिर्जा कह रही थी कि जवान देखने जाएंगी, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। दोस्त तो खैर हमारे भी बहुत हैं, बस दिल नहीं चाहता घर से निकलने का, क्या करें। मिर्जा देखो बात सुनो, कामयाबी ना हौसलों से मिलती है, हौसले अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, अच्छे दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं, और इंसान अपना मुकद्दर खुद अपने हाथ से बनाता है। तुमने भी क्या याद दिला दिया शक्ति। खालिद साहब कहा करते थे कि 60 साल का मर्द अकेला बैठा हो तो 60 साल का ही दिखाई देता, 60 के 2 बैठे हो तो 30 के दिखाई देते, 3 बैठे हो तो 20 के दिखाई देते। कहा करते थे कि ये दोस्ती के मजमून की रियाजी है। कहते थे कि दोस्तों से इख्तिलाफ जरूर रखो, मगर रहो जुड़कर, क्योंकि दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते। हमारी मानो ना मिर्जा, तो तुम्हें ना अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। देखो मिर्जा, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वो होता है जिससे मुश्किल वक्त में मदद मांगना आसान हो। अरे जो हमदर्द का दर्द बनना जानता हो, जो दूसरे के आंसू पोंछ सकता हो, जो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता हो मिर्जा, जो मरहम बनना और मरहम लगाना दोनों जानता है। मिर्जा अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी मुखलिस लोगों का तांता बना रह सकता है, जो कि मुश्किल वक्त में ना तुम्हारा हाथ थाम सकते हैं। देखो मिर्जा, जो रिश्ते हमारे होते हैं ना, उनकी अहमियत अपनी जगह, जो खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन जो रिश्ते हम यहाँ खुद बनाते हैं ना, उनकी अहमियत भी किसी से कम नहीं होती। सही कहा तुमने शाकिरा, बिल्कुल ठीक कहा। हम किसी के लिए आसमान बन सके ना बन सके, आस और मान तो बन ही सकता। अब हमें अपने हुकूक का दिफा खुद करना है। अरे कब तक दूसरों की राह देखते रहेंगे? उमक पहुंचते पहुंचते हमारी जीत तो हार में भी तब्दील हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी, मगर किसी ने क्या खूब कहा कि मुलाकात करते रहे तो जिंदा रहेंगे। अरे हमारे दिल की जब क्या कहते हो ऑपरेशन हुआ तो कुद्दूसी ने उसी दिन कह दिया था कि अगर खोल लेते दिल यारों के साथ तो खुलवाना ना पड़ता औजारों के साथ। एक बात और बताएं, जब घर से निकला करो ना तो ये अपने माथे की तेवड़ियां ना घर छोड़ के जाया करो, और अगर फिर भी दिल दुखे ना तो अपने रब से मांग लिया करो। बस फिर दिल जाने दर्द जाने खुदा जाने। दूसरी एक बात और कहता है, कहता है दोस्तों को घड़ी की सुइयों की तरह होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई चुस्त कोई चुस्त। मगर जब किसी के 12 बजे ना तो सारे दोस्त इकट्ठा हैं। हमेशा अच्छी बात करता है, तुम्हें तो जलन है। और एक और बात बताएं, इन तमाम बातों के बाद ना हमारे दिल में उमंग सी उठती दिखाई देती है। वाकई सितारे सब मेरे, महताब मेरे, अब न टूटना है ख्वाब मेरे।
तो क्या सोचा मिर्जा तुमने? मसला यहाँ खत्म नहीं हो जाता बेगम, बल्कि शुरू होता है। हाँ। जो हमारी उम्र के हम ख्याल लोग हैं ना, उन्हें इकट्ठा करने की जरूरत है। उन्हें इस बात को बावर कराने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे से राब्ते में रहना है, मिलते रहना है। अरे परसों ही की बात है, वो है ना फजल जमान खान साहब, हाँ। हैं उमर रसीदा, मगर बने फिरते हैं जवान। घर में गिर गए, कालीन पर पड़े रहे 3 घंटे। शाम को बेगम आई तो पता चला कि क्या हुआ है। तो ऐसा अगर एक कमेटी बनाने की जरूरत है मेरे ख्याल, एक कमेटी, चंद लोग हम ख्याल उसमें शामिल हो जाएं तो हम लोग शायद ये काम कर सके। हम लोग अक्सर मुलाकात करते रहे हैं, एक जगह भी लेनी पड़ेगी मगर बेगम, जहाँ हम सब लोग मिल सके। हफ्ते में रोज नहीं तो चंद रोज तो मिलते ही रहे, जहाँ पर लूडो कैरम बोर्ड भी खेला जा सके, छोटा मोटा मुशायरा भी हो जाए, और एक छोटा ही सही मगर कुतुब खाना भी हो गई। वाह मिर्जा, क्या बात कही। हाँ। मिर्जा, फिर तो हम अपने पोते पोतियों की सालगिरह और रोजा कुशाई भी वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मिर्जा, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बहुत सारे काम अंजाम देने पड़ेंगे, इसके लिए तो एक पूरा लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ पहला मरहला हुआ। हाँ। असल मसला तो एक और बहुत बड़ा है जिसे हमें हल करना है। अब वो क्या? तो वो ये कि हम सब हम ख्याल लोग, हम उम्र लोग मिलजुल कर एक ही जगह रहें, चाहे घर छोटे छोटे हों मगर साथ हों, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे को हौसला देते हुए। इसकी बड़ी जरूरत है अपनी कम्युनिटी में। मगर ये सब करेगा कौन? मिर्जा, तुम कहते हो ना सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है? भाई अपने हम ख्याल लोगों की एक कमेटी बनाओ। शुरू में 5-7 लोग काफी हैं, और उनको मिलाओ जो तुमसे ये बात पहले कह चुके हैं, और एक लिस्ट बनाओ कि ये काम किस तरह सर अंजाम देना चाहिए। ये बात तो सही कही। तो ऐसा करो, जाओ कलम और कागज लेकर आओ, बनाते हैं फिर। अब वो भी हम अब जाओ, तुम काम ना करना, हमें सोचना है ना। तो पहले ना एक लिस्ट तैयार करते हैं कि जिसमें ना अभी हमने क्या फारसी बोली सकते बेटे को देख के जज्बाती होगा ना, 10 लक्की की याद आ गया। जल्दी लाओ भाई, कलम जल्दी ला रहे हैं, कागज भी लाओ। इस उम्र में तो नहीं कुत्ते खेलेंगे ना। ले आए? हाँ, चलो बताओ। मैं बताऊं? ना बताओ। मैं एक बात कहेंगे, हाँ। हम मसावात के कायल हैं। हाँ। खवातीन को भी इस कमेटी में होना चाहिए, ठीक है जी। वो है ना तुम्हारी नई दोस्त गुल बदन बेगम, उनको जरूर शामिल करना। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। गुल बदन, गुल बदन। अरे मिर्जा, वो इस कदर फिट लिबास पहनती है ना कि यहाँ सब मर्दों को फिट पड़ने लग जाएंगे। आप ही बताइए भाई। बता। हाँ। बोलना मुश्किल। सुनाना का नाम लिख लेते हैं, वो जरा समझदार खातून है। तो समझदार, ये बात तो है। मगर चंद नाम और भी होने चाहिए ना। बोलो। नहीं मिर्जा, वो कैसे रहेंगे? मौलवी साहब। मौलवी साहब की क्या तुम्हें तो सब जरूरत है मौलवी साहब। लिखिए भाई, लिखिए। वैसे वो तुम्हारा कुद्दूसी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन नाम लिख लेते हैं। समझदार आदमी है, समझदार आदमी। दूसरी शादी करा रहा है तुम्हारी। वैसे इसके अलावा ना मिर्जा, तो चंद कम उम्र लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अरे अल्लाह ने इस शहर को ऐसे ऐसे कम उम्र लोग अता किए हैं अटलांटा को कि हम क्या बताएं। अरे जो इस जरूरत को महसूस भी कर रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वो वक्त देने के लिए तैयार हैं। खैर एक दो नाम तुम भी बता दो, हम कितना बताएं।
हम तो जो नाम बताते हैं उसके खिलाफ आप हो जाती हैं। तो नाम का नाम बताओ। वैसे 2 नाम और हैं हमारे बता दें भाई, वो दुर्गाना और तमन्ना तुमसे तो बात करना मुश्किल है। नाम बता दो, नाम बता दिया भाई। अब बस बहुत हो गया मिर्जा मजाक, ये बंद करो मजाक। अब बस देखो मिर्जा, संजीदा होने का वक्त आ गया है, तुम बात को समझो। देखो मिर्जा, अब ये सिर्फ हमारा और तुम्हारा मसला नहीं है, अब इस हर घर में यही कहानी है। अरे मिर्जा, किसी ना किसी को तो इसकी तरफ कदम उठाना होगा ना, किसी ना किसी को तो सोचना होगा कि ये मसला कैसे हल किया जाए। सही कह रही हो, मैं ये कदम तो उठाना पड़ेगा। बस दुआ करो शाकिरा कि अल्लाह हमें इतनी मोहलत दे और इतनी सेहत दे कि हम ये काम कर सकें। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मगर ये कहेंगे हम कि शायद हमें फायदा हो या ना, हमारे बाद आने वालों को ही फायदा हो जाए तो गनीमत है। तो दुआ है अल्लाह से कि सेहत दे और उम्र दे ताकि ये काम हम कर सकें। सही कह रहे हो मिर्जा, हमें हिम्मत करके ना कुछ कर। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी, कुछ दर्द बटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं और कुछ काम भी अभी जरूरी है। उन ख्वाहिशों और हसरतों को पूरा करना जरूरी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कर्ज चुकाना बाकी। कि अगर आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें, क्योंकि अभी हम एक एक करके सब आर्टिस्ट को कॉल करेंगे और वो यहाँ पर आएंगे, और अगर आप अपनी नशिस्तें संभाल कर रखेंगे तो आप उनकी भरपूर हौसला अफजाई कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही वेरी वेल रिटन, बहुत ही खूबसूरती से लिखा था। मुझे मेरा पसंदीदा जुमला कि वाकई शायद मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं एक रोटी मांगता था वो 2 देती। जब तक आर्टिस्ट रेडी हो जाएं, कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शरीना मेमन साहिबा का कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान अटलांटा इवेंट्स, जिस पर उन्होंने इस प्रोग्राम की प्रमोशन की, उनके लिए भरपूर तालियां बजनी चाहिए। 18 फरवरी को रोमियो जूलियट पेश किया जाएगा, प्लीज अपने पास डेट लॉक कर लें। 8 फरवरी को बज़्म अदब अटलांटा की तरफ से एक आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। 8 अक्टूबर को तो उसकी भी आप डेट नोट कर लें, ये स्प्रिंग हॉल इवेंट सेंटर में किया जाएगा। इसके साथ साथ 28 अक्टूबर जी, इट्स अ फ्री इवेंट। 8 अक्टूबर को प्रीमियर इवेंट हॉल नहीं, स्प्रिंग इवेंट हॉल से। इसके अलावा 28 अक्टूबर को अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ अटलांटा की तरफ से एक जश्न उर्दू का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें उर्दू नसर, उर्दू शायरी, गज़ल और दास्तान गोई को शामिल किया जाएगा।
یہ ایک منفرد طریقے کا پروگرام ہوگا جس میں ہمارے شہر کے جانے والے سنگر وشال پرفارم کریں گے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ڈیٹ کو بھی نوٹ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص اناؤنسمنٹ کہ اگلے سال آئندہ سال جولائی اور اگست کے مہینوں میں کھوئی کوٹ ہسپتال کو سپورٹ کرنے کے لیے شیما کرمانی اور ان کی ٹیم یو ایس ٹور پر آئیں گی. یہ 10 شہروں کا ٹور ہوگا اور یہ پلے الف لیلا اور ہزار داستان پیش کیا جائے گا. ہم اٹلانٹا میں یہ شو کریں گے اور اس کے بعد اس کو شو کو باقی شہروں میں لے کے جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی بھی لوگ اس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ایز اے والنٹیئر، کیونکہ ہمیں اس کے لیے ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہے، تو پلیز میک شیور آپ انعام بھائی سے، ڈاکٹر شیرشاہ سے یا مجھ سے رابطہ کریں تاکہ آپ اس ٹور میں ہمارا ساتھ دے سکیں. اب میں چاہوں گا کہ تمام آرٹسٹ کو باری باری کال کروں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اس شو کے انجینئر خلیق خواجہ صاحب سے کہ وہ آئیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں خلیق خواجہ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے میک اپ آرٹسٹ سے کہ وہ آئیں نگہت خلیق. بسام شاذلی. قمر حیات. آصف فاروقی. پلے کی ڈائریکٹر فرزانہ برمل صاحب. میں دعوت دوں گا لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کے فاؤنڈر ممبر ڈاکٹر شاہد رفیق کو کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں. اس کے بعد اس پلے کی مرکزی کردار صدف فاروقی صاحبہ. اور ناؤ دا مین آف دا ایوننگ محمد انعام اللہ. سامنے والا شاید میرے سامنے. پہلے تم ہی بولو. آپ سب کی تشریف آوری کا تہہ دل سے شکریہ. یہ آپ لوگوں کی سرپرستی ہے، محبت ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہو پاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوا. تو آپ لوگ اپنے کی ضرورت آگے بتائیں. والنٹیئرز نمبر 1 ریکگنیشن جو ہے والنٹیئرز کا ہے کہ کتنے گھنٹوں کتنے دنوں سے انہوں نے محنت کی. آج سارا رجسٹریشن سنبھالا، ٹکٹنگ سنبھالی، کھانے پینے کا انتظام کیا، پورے کرو کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اسٹیج سیٹ اپ کیا. اب اسٹیج کو کلوز کر کے واپس لے جانا ہے. تو ان سب کا بہت بہت شکریہ. میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا تو ہوں، لیکن اتنا وقت نہیں لینا چاہتا. سنڈے ایوننگ ہے تو ان سب کے لیے زوردار کرنا. یہ آج کا ٹاپک ایسا تھا سینئر سٹیزنز کے لیے کہ اس میں شہر میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے بہت محنت کی. ایک ہے رازدان صاحبہ، جس وقت ان کو ہونا تھا لیکن وہ موجود نہیں ہے. سبھاش بھائی شاید ان کے ہسبینڈ یہاں موجود ہیں، ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. وہ 20 سال سے سینئر سٹیزن کا پروگرام رن کر رہی ہیں فری آف چارج. اور کوئی ٹیگ نہیں ہے مذہب کی، کسی بھی چیز کی، جو بھی چاہے شامل ہو سکتا ہے. ونس اے ویک کو ملتے ہیں، پچھلے 20 سالوں سے مل رہے ہیں. بڑی بات ہے. ایک اور گرین وے سینٹر ہے
جو ہماری اسماعیلی کمیونٹی کے برادرز ہیں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. بہت ہی سکسیزفل، بہت ہی زبردست قسم کا سینٹر ہے. شاید میرے ذہن سے نام نکل گیا خاتون کا، نوین آثار. نوین آثار صاحبہ سے ملاقات رہی اینڈ دے آر ڈوئنگ اے فینامنل جاب آف رننگ اے سینٹر، سینئر سینٹر. تو ان کے لیے بھی تعریف. مجھے پتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں لینا آج، اسپیشلی تو یہ تمام لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے بڑی بہت محنت کی ہے. صدف اور آصف نے تو اپنا جو ان کا ایونٹ ہال ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا ہماری پریکٹسز کے لیے، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے. ان کا بہت بہت شکریہ. ہمیں گزارش کروں کہ ڈاکٹر شیر شاہ اور ان کی اہلیہ طیبہ بھی ڈاکٹرز دونوں ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. تشریف لے آئیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکیں. تشریف لیں، آپ دونوں آئیں. ڈاکٹر شیر شاہ کا بہت ہی لمبا چوڑا ریزیومے ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے. مگر یہ کئی ایوارڈ جو ہے نا یافتہ، انٹرنیشنل لیول کے ایوارڈ جیت چکے ہیں. جو کام وہ کر رہے ہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. انتہائی معتبر کام اور انتہائی خوبصورت طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اور کیسی کیسی خواتین صحت یاب ہو کر ان کے ہسپتال سے جاتی ہیں، میں مثال نہیں دے سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں رہ گئی ہے اگر آپ اجازت دیں. ان کا وائس آف امریکہ سے ایک دفعہ اردو میں انٹرویو ہوا. وہ ہمارے نواحی علاقے کے پی کے نواحی علاقے میں کسی سوات میں کسی نے سنا اور ان کے پاس فون آیا اس کے بعد کہ میری بیوی ہے اور اس کو یہ بیماری ہے اگر آپ. تو سوات سے وہ خاتون پہنچیں اور ان کا علاج 20 منٹ کی سرجری سے ہو گیا. اور انہوں نے خاتون نے جاتے ہوئے کہا کہ میں نے 41 سال کے بعد پہلی دفعہ نماز پڑھی ہے. ایسی کہانیاں کئی ہیں. یہ تو ایک میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں اور مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں. ان کا کام جو ہے وہ بہت ہی عمدہ کام ہے اور پورے ملک بھر سے غریب خواتین جو ہیں وہ ان کے سینٹر میں پہنچتی ہیں. اور ماشاء اللہ سینٹر ایکسپینڈ ہو گیا اور بڑا ہسپتال اب بن رہا ہے تاکہ مزید خدمت کی جا سکے. یہ کارڈز آپ لوگوں کو سامنے ملے تھے اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو اس پہ ڈونیشن کہاں دیا جا سکتا ہے. یہ 501c3 جو افیلیٹڈ ہے اس کے اوپر ایڈریس ہے. آپ چاہیں تو آپ جا کر اس کو ان کے کار خیر میں حصہ لیں، ڈونیٹ کریں. آج کا ہمارا جو ڈاکٹر شاہد رفیق، اگر آپ یہاں قریب آ جائیں میرے، تو آج کا جو ہمارا پلے تھا، جیسے کامیڈی میں یہ کہا گیا کہ آج کے ٹکٹ جو ہیں وہ شاہ رخ خان کے پروگرام سے زیادہ مہنگے تھے. تو اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سب مل جل کر جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیں اور آپ نے لیا. اور اس کے نتیجے میں کتنے ڈاکٹر صاحب ہم پیسے سیو کر پائے جو اس پروجیکٹ میں ہم دے سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ $10,000. یہ ہماری کینیڈا کی طرف سے آپ کی پوری گوٹ ہاسپٹل کے لیے ایک نذرانہ ہے. شکریہ آپ کو بول دیجیے. یہ چیک جو ہے یہ لٹریچر اینڈ آرٹس کی طرف سے لکھا گیا ہے، لیکن دراصل یہ تحفہ آپ تمام لوگوں کی طرف سے کہ یہ سارے آپ لوگوں نے پیسے دیے ٹکٹس کے. ہم نے اس پہ کم سے کم خرچہ کیا اور یہ پیسے جمع کر کے اس کار خیر میں حصہ لیا. تو آپ لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے شامل ہیں اس کار خیر میں. ایک کمرہ ہسپتال میں جو $20,000 کا بنتا ہے، جس میں 3 خواتین ایک وقت جو ہے زیر علاج رہتی ہیں. میری خواہش تھی کہ ہمیں کچھ اسپانسرز مل جاتے اور ہم یہ $20,000 مکمل کر کے کم سے کم ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے. مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ میں سے چند لوگ، 4 لوگ 2,500 کچھ لوگ مل کے سر کرنا چاہیں تو یہ شاہد علی موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لیں. اور جی کیا کہا؟ چلیں، بہت نوازش. عزیز بھائی شہر کے لیے بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے سائے کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ضروری نہیں کہ ہم اسی پر رک جائیں. آپ
آپ کو پتہ ہے میں تو شہر کا سب سے بڑا فقیر ہوں. تو ایک دو کمرے بن جائیں. میں ڈرامے میں جو اس پلے کو ہے فنڈ ریزنگ میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ لوگ اس کار خیر میں حصہ لیں. یہ بہت بڑا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہے, اور میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور کئی اور کہانیاں دیکھ کر آیا ہوں. 100 عورت 12 سال اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا, وہ درخت کے نیچے تھی, بیکاز شی یوزڈ ٹو اسمیل, یورین اس سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا. 12 سال وہ رہی گھر سے باہر درخت کے نیچے چھاتا ڈال کر, اور اس کے بعد اس کی سرجری ہوئی, اور اس کے بعد 12 سال بعد وہ اپنے گھر کے اندر گئی. تو ایسے کیسز کئی ہیں. تو اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں اور اس میں مزید کرنا چاہیں تو خدا را شامل ہوں. بلڈاگ انشورنس, بلڈاگ انشورنس نہیں رومانہ کے نام سے. جی ایک کمرہ ہم لوگ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. ایک اور کمرہ ہو گیا. رحیم بھائی, عزیز بھائی اور اسد بھائی جو ہے, یہ میرے جو ہیں 3 ایسے دوست ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ پہ, اس کا نام ہے 4 Stooges, اور میں جو ہوں وہ صرف مشکور بھائی, نوازش. یہ کمرہ نمبر کون سا ہو گیا؟ 4 کمرے ہو گئے. رحیم شاہ کھیل, عزیز زنانی, اسفرا, رومانہ, دلشاد بھابھی, اور آپ کا سارا خاندان. شبیر بھی بیٹھا ہے, آپ کا بھتیجا ماشاءاللہ, آپ کی اہلیہ, سب کا بہت بہت شکریہ. 4 کمرے ہو گئے, لیکن اور نمبر اچھا رہتا ہے تو بند کر دیں آپ. اگر آپ چاہیں تو اختتام کر دیں. ایسا نہیں کہہ دیا بند کر دیں بھائی, بند کر دیں. تو آپ لوگ شاہد سے کانٹیکٹ کر لیں, اور بقیہ لوگ جو بیٹھے نا, یہ کارڈ اگر آپ نے لیا ہے تو اس پر ایک موجود ہے ویب سائٹ کا ایڈریس, آپ جا کے ڈونیٹ کر دیں, اور انشاءاللہ ایک کمرہ اور ہو جائے گا ایز اے رزلٹ آف دیٹ. اگر 5 کمرے ہو جائیں تو بہت بہت شکریہ. 2500 کا کیا ہے, which is ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹارٹ ہے. بس اس میں کوئی نہیں کرتی, اور آگے اگر مدد نہیں سکتے ہیں تو بڑی بات نہیں. میں نے بھی کچھ دیا ہے سر, ابھی نام ایڈ کر دیں. میرے ساتھ اس اسکیم میں جڑ گیا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہتر. تو آپ اظہر بھائی اور میرا ملا کے تو وہ بس آپ یاد رکھیے کہ شاہد علی کو آپ کانٹیکٹ کر لیں, اور ایک بالکل اطمینان سے ڈاکٹر مشین بھی بیٹھی ہیں, ان سے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے, اور یہ شاگردہ رہی ہیں ان کی, اور اس سلسلے میں جو ہے نا آپ لوگ یہ کام کر سکیں تو بہت کچھ ہے. اب